Do you want to stand out among your peers in getting job in abroad? Then this video is for you. Hi everyone, my name is Dr. Tazim Shahbaz, your guide for building a global public health career. अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं या अर्ली करियर रिसर्चर हैं तो आपको पता ही होगा टू कंडक्ट अ रिसर्च इज अ वन थिंग एंड टू अंडरस्टैंड रिसर्च इज अनदर थिंग. Conducting a comprehensive literature review and fully understanding research can be challenging sometimes when it comes to complex section, figures, tables, or difficult concept. In this video, I will show you a super fast method of doing a literature review and streamlining the papers and to understand any paper fast. These practical strategies will help you build a strong research portfolio, save time, and make your work stand out for MPH programs, fellowships, and global public health opportunities. Let's begin. On most widely used search engine by undergraduate for literature search and that is Google Scholar. हम इसकी सर्च बार में अपना टॉपिक रखेंगे और सर्च करेंगे एंड वी सी के अब हमें ये क्या देता है. तो ये देखिए इसने हमें जो दिया है दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड व्यू ऑफ लिटरेचर. हम इसमें जो देख सकते हैं कि ये एक जेनेरिक सा व्यू है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल हमें उसने दे दी हैं और ये अबाउट 84,400 रिजल्ट्स हमें दे रहा है जिसको हम वी कैन स्किम, वी कैन एनालाइज एंड स्पेंड आवर्स टू डू दिस एंड दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लिटरेचर सर्च फॉर मोस्ट ऑफ द सर्चers. Is not lack of information, it's too much information. Now if we want to get information relevant exactly to our topic, we have to learn either some technique that is called match technique or the Boolean technique or advanced search to get results relevant to a topic. But do you think you can read 5 lakh article about your topic to write a literature review, or even if we only read abstract to cut it short, that's fine. An AI platform which is transforming the way of doing literature review. Excited to introduce you to SciSpace Literature Search because it's a game changer in the world of research. Its purpose is simple, just to simplify or accelerate the literature search process. You can now focus on the what matter most, that is research. अगर आप देखें तो on left hand side पे इसके जो है वो मल्टीपल आइकॉन्स हैं जिसमें एजेंट गैलरी, एआई राइटर, चैट विद पीडीएफ, लिटरेचर रिव्यू, फाइंड टॉपिक, पैराफ्रेजर, साइटेशन जनरेशन और एआई डिटेक्टर है. एआई डिटेक्टर में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो you can go and watch that video for the AI detection. But today we are going to explore its feature, that is literature review. हम सिर्फ explore करने नहीं जा रहे बल्कि we are going to ask ourselves a serious academic question, can we actually find the perfect research paper using only SciSpace. तो चलिए आए देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है. Something different that is not like the Google Scholar, बल्कि इसने हमें loads of literature नहीं दिया, but literature with some feature of deep understanding is there. Look at this in seconds जो है हम देख सकते हैं कि what is the type of the study and main finding इसकी क्या है, what is insight, TLDR और बाकी चीज़ें. अब इंसाइट क्या है? इंसाइट इज एआई जनरेटेड समरीज होती है उस आर्टिकल की, जैसे इस आर्टिकल की समरी ये है एआई जनरेटेड और दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिसर्च क्वेश्चन जो कि हम आस्क कर रहे हैं इससे. और जो टीएलडीआर है, टीएलडीआर जो होता है दिस इज जेनेरिक एआई समरी होता है जो कि हमें यू कैन ऐड मोर कॉलम एंड दिस, जैसे समराइज समरी की हुई है मैंने इंट्रोडक्शन की, इसी तरह कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट को समराइज किया जा सकता है, रिजल्ट, मेथड यूज और लिटरेचर सर्वे, लिमिटेशन फाइंडिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं लाइक दिस. These are the objective of this article. अब अगर हम देखें तो इसमें हम बगैर इवन ओपन किए किसी भी आर्टिकल को जो है वो बहुत सारी चीज़ें
कर सकते हैं। See another feature of this SciSpace, that is this is the summary, जो कि उसने हमें SciSpace ने 5 पेपर में से लिटरेचर हमारा रिव्यू लिख के हमें दिया है, ये देखिए। और हम इसको सेव कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये देखें तो उसने हमें जो लेटेस्ट स्टडीज़ है उसमें से ये लिख के दी है, दैट इज़ आंसर फ्रॉम टॉप 5 पेपर्स है। वी कैन ऑल्सो राइट टॉप 10 पेपर का भी लिख सकते हैं, बट दिस इज़ अ प्रीमियम फीचर एंड एज वी आर यूजिंग द फ्री वर्जन तो 5 तो कर ही सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फीचर ऑफ SciSpace एक्चुअली विच आई लाइक मोस्ट. Now let's refine the research. In conducting a literature review, I may also want कि हमें सिर्फ सिस्टमिक रिव्यूज मिले या PDF हो तो we can have this click and get PDF, all the PDFs there, and then we can also have other filters like open access, top papers can we take, and the other filter we can select year, publication type like journal article, conferences और journals भी select कर सकते हैं। और we can add keyword to include के जो कीवर्ड हम इसमें डाल सकते हैं। तो there are number of features के instead of manually doing this हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं 100 ऑफ एब्स्ट्रैक्ट को फिल्टर अप्लाई करके इंस्टेंटली, जो कि मैंने आपके सामने ये किया कि PDF सारे आगे हैं हमारे पास। Regarding the single paper, we can get the PDF, we can summarize the paper, we can do the podcast. Podcast जो होता है this is a paid feature और ये फ्री वर्जन में नहीं है। We can chat with that paper, question ask कर सकते हैं। Regarding the PDF, अगर मैं PDF को करती हूँ तो अगर आप देख रहे हैं कि ये PDF डाउनलोड मेरे लिए हो जाएगा और we can do anything with that। और उसके बाद जो है अगर मैं उसकी समरी लेना चाहूँ तो ये समरी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो खुद से ही समरी जनरेट कर रहा है, जो कि मैं एक आर्टिकल की जो पॉइंट्स हैं वो ले सकती हूँ। इसी तरह जो है हम PDF से चैट भी कर सकते हैं। See what we can do with a single paper. I'm opening the paper. This is the PDF, and this is chat with the PDF, and it's giving us the review. There are बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हम कर जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को कंक्लूजन कर सकते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सिमिलरली AI एजेंट है इस पेपर के लिए, जो कि सिमिलर पेपर हमारे लिए गूगल स्कॉलर पर वगैरह पे कर सकता है। और इसके अलावा देयर इज ए समराइज फॉर्म ऑफ PDF फाइल। अगर मैं इसको ज़्यादा ओपन करती हूँ फुल स्क्रीन के लिहाज से तो अगर आप देखेंगे कि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप करके PDF में मैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करती हूँ तो इट गिव्स मी ऑप्शन कि इसको टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दे, समराइज कर दे, इससे रिलेटेड पेपर कर ले या इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। तो आई एम डूइंग गेट रिलेटेड पेपर। जब मैंने इसको गेट रिलेटेड पेपर कहा है तो वो स्कैन कर रहा है लिटरेचर को और हमें रिलेटेड पेपर दे देगा। इसी तरह ये देखें इसने हमें वो पेपर दे दिए हैं विद ऑल द रेफरेंसेस, रिलेटेड पेपर हमारे पास आ गए हैं और इन्हीं जो है इससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है। सिमिलरली अगर आप ये देखें तो हम अगर नीचे चलते जाएं इसके इस फीचर के साथ तो इसमें हमें एक ये टेबल मिलता है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस टेबल को हमें एक्सप्लेन करवाना है, ये फिगर्स हैं हमारी, हमने इसको एक्सप्लेन कराना है तो हम सिंपली एक्सप्लेन मैथ एंड टेबल को जो है क्लिक करेंगे और इस जो फिगर है इसको लेके ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी नीचे और इट विल एक्सप्लेन अस। ये स्कैन कर रहा है और ये आराम से यहाँ पे स्कैन करके हमें जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देगा। इट विल टेक सम टाइम एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। दिस इज सो ब्यूटीफुल फीचर कि हम बगैर कुछ किए, बगैर उसमें वो किए, हम अपनी जो फिगर्स हैं जो हमें कम्प्लेक्स फिगर समझ नहीं आ रही हैं, डायग्राम्स हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं, हम उससे एक्सप्लेन करवा सकते हैं।
Let's answer the big question. Can we find the perfect research paper using only SciSpace? The next answer is SciSpace dramatically जो improve करता है हमारी efficiency और understanding को, starting from finding paper with logics with deep understanding जैसे कि हमने पहले पेज में देखा, और then finding the this PDF chat जो कि हम करते हैं और different question का आंसर हमने लिया हमारे अगर देखा जाए तो फिगर्स को और टेबल्स को वो एक्सप्लेन कर सकता है, और एक हमें सबसे बड़ी बात जो उसने हमें समरी जो दे दी उसकी लिटरेचर रिव्यू की 5 पेपर्स की, एक लिख के लिटरेचर रिव्यू दे दिया, और ये सारी चीज़ें जो है वी शुड स्टिल क्रॉस वेरीफाई द डाटाबेसेस जो कि पबमेड से या हम कम्प्रिहेंसिवनेस के लिए उसको वेरीफाई कर सकते हैं। We can think of SciSpace not as a replacement of our critical thinking and hard work, but as a powerful, intelligent assistant of research. डियर रिसर्चर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ आ गई होगी कि साइज स्पेस को कैसे अपने बेनिफिट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को रिसर्च का बढ़ाने के लिए, एंड टू स्टैंड आउट अमंग द पेयर्स इन अब्रॉड। इफ़ यू like this channel, please subscribe and share with your friends so that they can also benefit from this. If you are facing any difficulty, please let me know. I will be happy to help you. For today, thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye.